Index 6 and 300 plus citation in a paper titled Work-Life Balance, a conceptual review. He has specialization in finance, entrepreneurship, and soft skill developed, and he has handled many projects, and he has also conducted MSME. So he is a very young, dynamic researcher. So he is about to present his topic in this MSME training. So I will like to invite you, sir. Thank you so much too. Good afternoon to all of you, to all the participants. It's a post-noon session. When you have a lunch and you start to have a session, then obviously there are considerations of attention. First of all, I'd like to thank Professor Shukla sir that he invited me for a session with the participants in this MSME sponsored program, and I'm very thankful to Dr. Richa. She introduced me, being a colleague. Thank you, Dr. Richa. Dear participants, now let's come to the main. जो मुझे आपसे बात करनी. Are you comfortable with English, or should I swap in between English and Urdu? नहीं ठीक है ये सारे. English is fine with everybody. Please raise your hand. Let us be active. How many of you are very fine with my English? Okay, good. We'll be active throughout the session, right? Okay, is that all? Because so that you will also on the front foot, not on the back foot. Okay? As we play in cricket, we say you have to be on the front foot to play the ball, so you'll be on the front foot. So, what I'm going to discuss today is something that is very, very important. To establish an enterprise, to establish a business unit, एक अपना व्यापार खड़ा करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है. And having that said, business ही नहीं, आपको अपने आप को भी कंडक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस मीट करने के लिए पैसे का बहुत अहमियत है. That's a very vital role. So उसी के ऊपर थोड़े से मैं आपको चीजें डिस्कस करूंगा कि एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए पैसे का इम्पोर्टेंस, अहमियत क्या है, what is going to be the importance, plus what are the different ways by which you can secure that. आपके कैसे, खुसूसन मैं गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ आपको इशारा दूंगा सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन विल बी मोर और लेस कि हम समझेंगे कि पैसा या फाइनेंस की हम प्रूडेंस क्यों चाहिए. प्रूडेंस मींस what we can make of the understanding of the word prudence. Prudence means समझदारी. हम बोलते हैं ना इसमें बहुत समझ है, विजडम है, पैसा खर्चने की या पैसे लाने की. सो वो प्रूडेंस देखेंगे, उसके प्रिंसिपल्स, उसके मेथोडोलॉजीज, थोड़ा सा ऊपर से ही, जो ऑलरेडी शायद आप में से करते होंगे कुछ, मगर उसको उस चीज का पता ना हो. एंड सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन मैं डेडिकेट करूंगा उस स्कीम्स का थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना. इट वोंट बी एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, यानी सब कुछ उसमें नहीं आएगा, बट इट विल बी समथिंग यू कैन टेक अवे कि या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये यार स्कीम रखी है, स्टेट गवर्नमेंट की ये स्कीम है, some of the financial institutions में यहाँ से हम पैसा ला सकते हैं. ठीक है, सब्सिडी बेस्ड, लोन बेस्ड और some other ways जहाँ से आप पैसा हासिल कर सकते हो. तो वो होपफुली सेशन का मेरा फोकस होगा. But before I begin, I would like very quick sort of, we call it icebreaker. Icebreaker मतलब आपसे मैं थोड़ा सा जानूं, आपका इंट्रोडक्शन and what you are currently dealing. ठीक है, आप क्या करते हो, आप बिजनेस करते हो या आप अभी क्या कर रहे हो, what are your priorities, मगर जल्दी से बोलिएगा because we have very limited time. ठीक है, आप वो मुझे डिस्कस करें. मेरा हालांकि इंट्रोडक्शन आपको मिल ही गया, where I am. ठीक है, मेरा थोड़ा सा जो आपको व्यू मिल गया कि मेरी एक्सपर्टीज क्या है, मैं किस एरिया से बिलोंग करता हूँ, और फैकल्टी भी यही हूँ. ठीक है, एक डिफरेंट डिवीजन से. यहाँ मेरा बहुत सारा आना जाना रहा है कॉलेज ऑफ एग्री इंजीनियरिंग बीएससी स्टूडेंट्स को लेके, उनका कोच हुआ करता था. वेरी क्विकली आप स्टेट करें नेम और आप क्या करते हैं, बैठ के आराम से. माय सेल्फ संदीप यादव, करंटली पीएचडी वेजिटेबल साइंस. ओके, तो वो अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट और सर पोटैटो पे एक इंडस्ट्री जो है चिप्स की, हाँ सर इसको लगाना चाह रहा हूँ. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत नीक ख्याल. I'm Himanshu Gupta, I'm from Assam, and I'm currently in master's program in vegetable science. Okay. Any entrepreneurial startup that you would like to which you have planned also, that also you can So after going back, I plan to set up a farm over there
farm of it's integrated considering animal husbandry and all the other so like production setups. okay, great. Sir, I'm Bhagyashree Pasarar. Presently, I'm MTech Food Processing Technology. I'm about to complete. Sir, we have a coconut plantation. I thought of doing a entrepreneurship in coconut and coconut products. And we also, I'm from North Karnataka. We Jowar roti and some food business I want to do soon after going from. What are the value-added products of coconut? Sir? Do you have some knowledge of value-added products of coconut? Yes. Apart from the raw coconut that we Yes, can- raw coconut, some of from other side like South Karnataka they are selling like a raw coconut with proper packaging and all. In North no one is doing that. I want to look at on that and dry coconut flakes, that grated coconut and coconut water, that I want to research on that and I'll do small scale first, then all the very best. Right. So this is Madhya Mansoor. I'm from MTech Processing and Food Engineering, and my next plan is to pursue PhD. So regarding the enterprise, I have not yet decided on that. Okay, but you should think Yes. about it. Because So that that's is why I'm here, to learn more and widen the horizon of my knowledge. very good. I am Harshad Thakre from Maharashtra. I am currently pursuing MSc PhM and nursery या mushroom cultivation. Which you have planned, eh? And पता है आपको यहाँ एक हमारा एक you already are known since you are in house our own maybe aspiring entrepreneurs, right? We use a word called as aspiring. He is already planned. Planned, yeah. First thing is जब आप motivation आपके अंदर से हो, then only it can take a practical shape. तो हमारा जो घुंगुल हो रहा है इस बार इसी महीने में weeks time में शायद होगा 14 से 16 फेब तक है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको आइडियाज भी मिल सकते हैं क्योंकि वहाँ पर स्टार्टअप्स और एंटरप्राइजेस वो डिस्प्ले पर रहेंगे. तो जस्ट एज एन क्योंकि बोलते हैं ना एंटरप्रेन्योर इज समवन हु सीज अपॉर्चुनिटीज, तो शायद वहाँ से आपको कहीं ना कहीं आइडियाज बिल्डअप हो और आप उसको नेक्स्ट लेवल, क्योंकि इस कॉस्ट के कल्चर इकोसिस्टम ऐसा है दैट प्रमोट्स स्टूडेंट एंड फैकल्टी एंटरप्राइज इन स्टार्टअप्स. या next one please. So, my name is Rahul. I am from Kota, Rajasthan, and currently I am pursuing masters in post-harvest management. Okay. And during my masters, I have prepared a polyherb formulate using six herbs. So after this, I am trying to explore in that area. Very good. All the very best. So it's great to know you. ठीक है. Just as the starting ground. तो हम एक इसके बाद अपने सेशन को so I could relate some examples with you जब जो आपका background होगा. तो as it goes, these are the some of the formalities session में आप क्या चीजें करें, ठीक है, that I normally do engaging session because it's out of the classroom right now we are part of, ठीक है. Although I know the bulk of the knowledge and communication and experience will come from my side, but you can stop me anywhere where you feel that kindly enlighten or give us more inputs on that. तो अगर किसी को बोले कि हम जस्ट एक कॉमन हम एक क्या करेंगे सेशन में, अंडरस्टैंडिंग देन प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, राइट, समझेंगे और उसका सही रूप से अमल में लाना वो हम समझेंगे, राइट. अगर किसी को हम बोल दें कि इसके पास फाइनेंशियल विजडम है, फाइनेंशियल लिटरेसी वर्ड में बोलते हैं कोई लिटरेट है या फाइनेंशियल प्रूडेंस है इसमें, वो हम उससे क्या मतलब है, एक वर्ड से आप मुझे समझा सकते हो वो उसका क्या मतलब है? ऐसा कर सकता है क्षमता कैपेसिटी. हाँ, क्या चीज कर सकता है? पैसे की समझ है. पैसे की कौन सी समझ होनी चाहिए? Sir, कहाँ से लाना, किस जगह. हाँ, now you are पैसे को लाना, one और You should know the schemes which are giving subsidies and all. वेरी गुड, पैसे को लाना कहाँ से खींचना है पैसे को, Where they get- राइट. Yes. तो और दूसरी चीज क्या जरूरी है? आई अंडरस्टूड, चाहे स्कीम से हो चाहे उसके अपने कॉन्टैक्ट्स हो जहाँ से भी वो लाए पैसा, और क्या जरूरी है? इसके बाद किस जगह इन्वेस्ट करना है, हाँ, क्या cost उसका विजन है. benefit उसके वेरी हिसाब गुड, से। कि किस जगह मुझे Invest इन्वेस्ट करना किस है। कहाँ जगह मुझे इन्वेस्ट करना है और कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है. About generation of profit. कॉस्ट बेनिफिट Cost रेशियो पता होना चाहिए. हाँ, कॉस्ट पता होनी चाहिए, हाउ मुझे कैसे प्रॉफिट्स आए. Yeah, so they should know when they'll reach break-even point and after that profit. That Very that good. all we had to. वो तो एनालिसिस है, वेरी गुड. वहाँ पर मुझे कौन सा वो है कि जहाँ पर ना ही मैं नफा में नुकसान में हूँ, वो तो कैलकुलेशन पार्ट है, दैट्स वेरी गुड.
कि जैसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, वो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो इन नटशल बोलेंगे लिटरेसी उसमें जिसको पता है पैसे कहाँ से खींचे, कहाँ इस्तेमाल करे और सही से अपना फायदा प्रॉफिट भी कमाए। तो 3 चीजें, राइट। सो जिसको ये चीज आएगी, अब देखो एक जो फैमिली का बंदा है यानी फैमिली हेड है, उसको पता होनी चाहिए कि मुझे कहाँ से पैसा लाना है, ठीक है। वो सैलरी बंदा है या वो बिजनेस से कमाता है या वो कोई प्रोफेशन में करता है, और फिर उसको क्या करना है, उसको खर्चा में अपनी फैमिलीज पर, एंटरटेनमेंट पर, फूड पर वगैरह वगैरह पर। तो बिजनेस जब आप स्टार्ट करोगे आपको भी एक क्लियर आंसर आना चाहिए, पैसा कहाँ से मुझे खींचना है, कहाँ से लाने, कहाँ से जराए होंगे और किस पर मैं लगाऊंगा। ऑब्वियसली आपको बिजनेस आइडिया होगा, तो जिस बंदे में ये चीज होगी उसको बोलेंगे उसके पास इसका नॉलेज है, उसके पास लिटरेसी है, उसके पास वो प्रूडेंस है। इन अदर वर्ड्स मेरे अल्फाज में बोलो तो उसको मनी मैनेजमेंट आती है। क्या आती है? मनी मैनेजमेंट। या फंड्स मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट या आर्ट ऑफ व्हाटएवर यू कैन यूज, टर्म्स आप इंटरचेंजेबली कर सकते हो यूज। तो आपको क्या करना है इस सेशन के आखिर पर, मैं चाहता हूं कि कम से कम आपकी सेंसिटाइजेशन हो जाए कि मुझे मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। उसके लिए क्या क्या शराइत हैं, देखिए वेरी सिंपल, I'll put before you. मनी मैनेजमेंट में क्योंकि एक कोट है I would like to share with you, entrepreneurs do not fail due to lack of money। उस वजह से आजकल की गवर्नमेंट आप देखेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, they are pumping huge money, बहुत सारा पैसा जाता है। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पैसा प्लस टेक्निकल, जो ये अभी चल रहा है ये आपकी टेक्निकल नॉलेज के लिए है, आपकी नॉलेज के लिए MSME के थ्रू गवर्नमेंट काम करती है, देन दे आर फ्लोइंग फंड्स टू सम टॉप इंस्टीट्यूशंस, और ये नॉर्मली जाता है IIMs को, IITs को। तो ये फंडिंग कॉस्ट को भी मिली है, जो यहाँ का यूथ है, चाहे वो स्टूडेंट ड्रिवन हो, चाहे का बिजनेस कम्युनिटी है, उन तक बात पहुंचे, उनको वो टेक्निकल विजडम और मोटिवेशन उनमें आए। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फेल नहीं हो रहे बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ मनी, बट ड्यू टू पुअर मनी मैनेजमेंट। उनको वो नहीं पता है कहां से पैसा खींचना है, सब्सिडाइज्ड पैसा कौन सा है, पैसा जो लोन बेस्ड है वो कौन सा है, किन किन स्कीम्स में वो आ सकता है। तो मनी मैनेजमेंट लैकिंग है। अब मैं आपको 4 बेसिक असूल बताऊंगा वेरी क्विकली, वो आपको अप्लाई करने, वो आपको जब आप फील्ड में जाए, स्टार्टअप में जाए या कोई एक्टिविटी में कराओ उसमें अप्लाई करना है। पहला, आपको देखना है, आपको आंकना है कि मुझे फाइनेंस कितना चाहिए। पहले तो स्टार्टअप का आइडिया सबसे बड़ा कि मैं किस में जाना चाहता हूं, कौन सा बिजनेस मैं जाना चाहता हूं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि मुझे इस बिजनेस में कितना पैसा लगेगा। पहली चीज मैंने बोला पैसा कितना मुझे लगेगा, तो यू शुड हैव एन आंसर। फॉर एग्जांपल कोई अपना, जैसे इन्होंने बोला कोकोनट का कोई बिजनेस है या कोई इस तरीके का बिजनेस है, शी शुड हैव अ नॉलेज कि मुझे कोकोनट का एंटरप्राइज खड़ा करने के लिए कितना पैसा लगेगा। अब ये सोचे कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल नई हूँ इसमें, नोविस हम वर्ड यूज करते, नाइव हूँ, तो मगर ऑलरेडी कोई बिजनेस करता होगा ना, उनसे इंफॉर्मेशन खरीदनी। या आजकल उतना डिफरेंट नहीं, वी लिव इन अ टेक वर्ल्ड, आप AI के वर्ल्ड में भी रह रहे हैं। यू कुड आस्क हिम, गिव हिम सम ऑफ द डायमेंशंस कि मुझे आया इतना जमीन है, इतने मेरे पास ये है, टेल मी व्हाट शुड बी द फाइनेंस, टेंटेटिव, है ना, आपको आंसर एक मिले, सो यू कुड नो। तो अपने जरूरतों को इसमें तकसीम करें कि मुझे पैसा कितना चाहिए, कल को जाके मुझे मत इसमें कोई एसेट लानी है, यानी कोई मशीनरी वगैरह मत लानी है। कल को इसको प्रोजेक्ट को चलाने के लिए या ये काम करने के लिए हम बोलते वर्किंग कैपिटल, यानी चाहे वो कुछ भी हो, किसी को हायर करना, यूटिलिटीज के लिए चार्ज पे करना, ठीक है। जैसे हमारा आज का सेशन कंडक्ट करने के लिए हमें बहुत सारा वर्किंग कैपिटल इसमें चाहिए, ठीक है। आज के सेशन में हमारे पास एक्सपर्ट्स का होना, उसका ऑनरेरियम और जितने भी खर्चे चल रहे हैं, खाना पीना वगैरह, वो सारा वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। और कुछ उसके अलावा अगर आपको चाहिए, जो भी कुछ ऐसी अनयून सिचुएशंस हैं, तो बात पते की ये पहला पता होना चाहिए मुझे कितना पैसा चाहिए। तो वन इस मनी मैनेजमेंट के लिए ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मेरे जराए कौन होंगे इस पैसे को लाने। फॉर एग्जांपल आपने एस्टिमेट कर लिया मुझे 10 लाख की जरूरत है, क्या है, मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे स्टार्टअप आइडिया में मुझे 10 लाख की जरूरत है। कितनी की? 10 लाख की। आई नीड 10 लाख। नाउ 10 लाख तो जेब में नहीं आएगा ना। हाँ, आप में से जो वेल्दी होंगे, जिनके पास पैसा होगा फ्रॉम द फैमिली, और कोई इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रहा है, वहां से उसको कुशन होगा, किसी के पास लैंड होगा वो सेल कर सकता है।
बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज होती है कि शायद पैसा खुद से ना आए, सो देन यू हैव टू लुक आउट फॉर अदर सोर्सेज अदर देन योर ओन। तो उसमें सरकार भी आपके पास है, सरकार की स्कीम्स हैं, उसमें आपके पास बैंकिंग मैकेनिज्म है, उसमें आपके पास बहुत सारे इंडिविजुअल पीपल भी हैं जो आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं। जैसे आपने शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा, ठीक है, जब आप पिचिंग करते हो अपनी आइडियाज की, वो आपको अपना पैसा शेयरिंग बेस में आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके बिजनेसेस में। सो देयर आर मल्टीपल सोर्सेज, राइट। और NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी होती हैं जो शायद बैंकिंग मैकेनिज्म में नहीं चलती है, ठीक है, वो आपको पैसा देने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। तो आप फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये सबसे कम अच्छा सटीक पैसा होता है जिसमें ज्यादा या ना इंटरेस्ट हो। फैमिली एंड फ्रेंड्स बोलते हैं ना अपने घर वालों से या फ्रेंड से, मगर एक चीज क्लियर करा करें कि जब फैमिली एंड फ्रेंड से पैसा खरीदते हैं, इंश्योर करें कि सारी चीजें क्लियर हो, ठीक है। कल को जाके पता चला कि दोस्त से लड़ाई होगी, फिर वो पैसा मांगे, इस किस्म की नौबत ना आए, ठीक है, जो कि रिलेशनशिप्स मत डिस्टर्ब हो जाए। तो दूसरा क्वेश्चन, सोर्स, राइट, कि कहां से मुझे खींचना है, 10 लाख कहां से खींचूंगा। मेरा देखिए, आप अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स को मैं आगे चलते हुए आपको डिस्कस करूंगा, गवर्नमेंट की स्कीम का अगर मुआवजा करें, गवर्नमेंट चाहती है कि अगर हम किसी यूथ को, किसी एंटरप्रेन्योर को पैसा दे, कम से कम 10% उसका खुद होना चाहिए। वो करते हैं डिफरेंट मॉडल्स पर वर्क कि उसको लगे कि मेरा भी इसमें पैसा है। सो 90:10 रेशियो होता है नॉर्मली, ठीक है, या 50 समथिंग, ठीक है। वो चाहते हैं 90% गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है, डिपेंड करता है, HADP में है ऐसी गुंजाइश। वो चाहती हैं जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी दी 50% की, 10 लाख है, 5 लाख गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी। दूसरा 4 लाख, अगर आपके पास 1 लाख है खुद का, 4 लाख कहां से लाएंगे, देन यू हैव टू सी वेदर इट कुड बी लोन, वेदर इट कुड बी थ्रू सम पार्टनर, ठीक है। आपके पास कौन सा और क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ये सवाल भी आपका जवाब निकला, यू हैव टू आंसर दीस क्वेश्चंस अपने हिसाब से, फिर उसका इस्तेमाल कैसे करो। ऑब्वियसली जो आपने आइडिया सोचा होगा उसी के ऊपर उसका इस्तेमाल करना है। उसमें जो जो जरूरत है, एज एंड व्हेन दे अराइव, यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट। जरूरतें क्या होती हैं? जरूरतें अगर आप किसी बिजनेस का थोड़ा सा समझ करें, उसमें लॉन्ग टर्म जरूरतें, वो शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब जिसमें पैसा बहुत टाइम के लिए खपे। फॉर एग्जांपल, हमें कोई बिल्डिंग खड़ा करनी है, इसमें पैसा बहुत टाइम के लिए जाएगा, ठीक है ना, इसको लॉन्ग टर्म यूज। इसी तरह मशीनरी लाएंगे, कम से कम अगर ये इसकी लाइफ स्पैन होगी 10 साल की, तो पैसा लॉन्ग टर्म में जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में कौन सी जरूरतें होंगी पैसे की? पैसे में शॉर्ट टर्म में होगी, आपको रेंट देनी हो, मे भी कहीं जगह शॉप खरीदा और रेंट देनी हो, आपने कोई हायर करा हो पर्सन उस काम के लिए, उसको देना होगा पैसा, ठीक है। आपको यूटिलिटीज का चार्ज देना होगा, वो शॉर्ट टर्म यूजेस है, क्या है, सारी शॉर्ट टर्म के। आपको माल लाना पड़ेगा या कुछ ऐसा, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इनपुट्स लाने पड़ेंगे, तो उसमें शॉर्ट टर्म की जरूरत है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो यू हैव टू क्लासिफाई कि मुझे किस में कितना पैसा चाहिए। एक अच्छा, हम बोलते हैं फंड मैनेजर, वो है जो ये आंसर्स क्लियर करे, ठीक है, यानी अपनी शॉर्ट टर्म जरूरतें, अपनी लॉन्ग टर्म जरूरतें, ठीक है। और फाइनेंस का प्रिंसिपल रूल मैं बताऊंगा आपको। प्रिंसिपल रूल मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म सोर्सेस लॉन्ग टर्म जरूरतों के लिए खर्च करो। समझ आ रही है बात? फॉर एग्जांपल, मैं ला रहा हूं अपना पैसा, ठीक है। बेहतर है कि अपना पैसा सबसे परमानेंट सोर्स होता है ना, क्योंकि जब तक मैं हूं, मेरा बिजनेस चल रहा है, अनलेस यू, ये हेरिडिटी वाला बिजनेस है जो बाप के बाप है पूरा, जिससे आपका हक है। और कहीं ना कहीं जब तक आपका पैसा आपके बिजनेस में है, वो आपके इस बिजनेस में रहेगा, अनलेस आप वहां से लिक्विडेट करें अपने आप को, आप उनसे हटा दें आपके पैसे को। तो लॉन्ग टर्म सोर्स, लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। जैसे आपको बिल्डिंग खड़ा करनी है, आपको मशीन लानी है, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस का इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आपको लोन शॉर्ट टर्म लिया, फॉर एग्जांपल, लेट अस थिंक एन एग्जांपल, अ सिचुएशन जहां ये प्रिंसिपल वायलेट करे, ठीक है। आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली, ओवरड्राफ्ट आई होप यू नो, ठीक है। आप अपने से जायद जितना आपके पास उसमें है, आप उसे जायद ले दो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको पता है ये शॉर्ट टर्म सोर्स है, विद इन अ ईयर आपको रीपे करना है। अब आपने इससे मशीनरी खरीदी, क्या खरीदी? मशीनरी का जो पे बैक होता है वो टाइम लगेगा। पे बैक मतलब जो इसे वापस आपको कमाएंगे वो बहुत टाइम लगेगा, उसको हम बोलते हैं फ्रॉम एसेट टू सेल, इसमें टाइम लगेगा। हालांकि वो सेल के लिए नहीं होता है, उसमें आप इस्तेमाल करते हो अपने काम को करने के लिए। इससे बेटर था कि आप ये पैसा स्टॉक में लगाएं,
या कोई स्टॉक, क्योंकि स्टॉक जल्दी से कन्वर्ट होगा इनटू सेल और आपको फायदा भी देगा. सो क्लासिकल प्रिंसिपल, लॉन्ग टर्म सोर्स फॉर अ लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन, शॉर्ट टर्म सोर्स फॉर अ शॉर्ट टर्म. बेहतर था कि अगर आपने बैंक से लोन लिया शॉर्ट टर्म, वो किसी चीज में लगाएं जो आपको शॉर्ट टर्म जरूरत है, जैसे मैंने बोला स्टॉक परचेज करना या कोई और सैलरी देना जो आप जल्दी से वापस कर पाओ. आपको याद है विजय माल्या which ran from India, उनमें क्या मसला था, उनके पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, they were not able to meet out the short term sources, तो वो bankrupt हुए क्योंकि उनके पास liquidity issues था. Liquidity means short paying capacity short term. ये टर्म यूज करते हैं जब जिसके पास इतनी क्षमता ना हो, वो शॉर्ट टर्म जरूरत है. आए दिन हमारी बहुत सारी जरूरत है, जैसे अगर कॉस्ट कश्मीर में शॉर्ट टर्म सोर्सेज का क्राइसिस आ जाए तो हमारी सैलरी नहीं आएगी फॉर एग्जांपल, तो सैलरीज का इशू बढ़ जाएगा, वादे बढ़ जाएंगे, सारे साइंटिस्ट परेशान, उनके घर वाले परेशान, हम सर कोसेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स. तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं. तो उस विजय वालिया के उस एयरलाइन बिजनेस में इसका इशू रहा. तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज को सही से इस्तेमाल करना ये एक कला है, फंड मैनेजर की कला है. और आपको पता है हमारी माएँ सबसे अच्छी फंड मैनेजर होती हैं जो अच्छे से प्रूडेंस करती हैं, उनको पता है जरूरतें मेरे इस महीने की कितनी है. सो दे आर द बेस्ट फंड मैनेजर्स एट लीस्ट इन वर्किंग कैपिटल. शॉर्ट टर्म सोर्सेज उनको पता होती है, मुझे महीना कैसे निकालना होता है. तो ये महीना निकालने की कला आपको एक्चुअली जब आप प्रैक्टिकली बिजनेस में जाएंगे आप वो सीखेंगे प्रैक्टिकल में. तो नाउ उसके बाद crisis. They help in the crisis time. हाँ, they help in the crisis time. उन्हें बफर भी रखा होता है थोड़ा हालात जब नामुवाफिक हो जाए. सर हमारे इसमें ना कश्मीरी कल्चर में क्या है, वही हमारा स्टेबल फूड राइस है. हाँ, yes. तो हमारी माओ का क्या होता है कि वो दे कीप बफर ऑफ राइस एवरी टाइम. सो व्हेनेवर द सिचुएशंस आर नॉट अप्रूव्ड दे हैव समथिंग इन स्टॉक. और वो पहली हम बोलते हैं इन्वेंटरी को रिप्लेनिश करते हैं, वापस मंगाते हैं. तो उनकी ये स्ट्रैटेजी होती है कि हमारी वर्किंग कैपिटल ना हो जाए कम, हमेशा घर गृहस्थी अच्छे से चले. तो लास्ट पॉइंट इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी जब अब आपने पैसा भी लाया, कितना लाना है वो भी लाया. 10 लाख मैंने बिगिन में कहा था, 10 लाख की जरूरतें कहां से करनी है वो भी पता चली, वो खर्च करा हमने. अब उस पैसे 10 लाख जो आपके बिजनेस को भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जहां पर इंटरेस्ट सब्सिडी बेस्ड 90% तक भी जा सकता है, जो मैंने हाइलाइट्स में लिखा है. तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जहां पर 90% की सब्सिडी मिलती है. आई वुड लव टू शेयर यू जो हमने डॉक्यूमेंट यहाँ बनाया, स्कॉस्ट कश्मीर ने एक डॉक्यूमेंट बनाया स्कीम्स का, और मैं उसका हिस्सा भी रहा थ्रू द ऑनरेबल वाइस चांसलर. वी फ्रेम गवर्नमेंट का या सारे सर सारे सेंट्रल स्कीम्स हैं, मगर सारी नहीं कवर हुई है, मेजर स्कीम्स कवर हो रही है सर. सेंट्रल स्कीम्स कौन सी हैं, स्टेट की कौन सी स्कीम्स हैं सर, HADP के अंडर. तो वो हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, बट इट्स इन प्रोग्रेस. होपफुली उसको हम फाइनल शेप देखेंगे फॉर इट टू बी इन द पब्लिक डोमेन. तो उस पर काम हो रहा है. तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं. गवर्नमेंट क्या चाहती है, व्हाट इज गवर्नमेंट लुकिंग आउट फॉर फ्रॉम प्रोवाइडिंग दीज सॉर्ट ऑफ स्कीम्स, कि हमारे जो यूथ है वो अपनी सेल्फ रिलायंस के लिए काम करें, ठीक है. बट when we see schemes are there, they are not free. Remember that. Schemes हैं, free नहीं है. अभी उसमें बहुत सारे राइडर्स हैं. स्कीम में अगर आपको 90% की भी सब्सिडी है, ठीक है, यानी आपको 100 में से 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, बट they would like to see it कि this is used in the most beneficial way, जिस काम के लिए डेडिकेटेड ये पैसा हमारा. और गवर्नमेंट चाहती है कि जो 10% है वो यूथ अपने हिसाब से देखे वो कहाँ से वो लाए. हालांकि मुझे एक क्वेश्चन भी आया, उन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट इतना सीरियस है कि वो चाहती हैं कि यूथ डेवलप हो, उनको फाइनेंस की कमी ना रहे उनके आइडियाज को, वो उन्होंने फिर 10% की भी क्यों रखा है, व्हाई नॉट 100% फुली सब्सिडाइज. मगर सब्सिडाइज अगर फूड रखे ना, उसमें एक ही इशू आता है, जब खुद का पैसा होता है ना थोड़ा, जब खुद का पैसा जैसे साहब ने बोला ना, उतनी तड़प नहीं रहती है. जब खुद का 5-10 रुपया होगा तो तड़प रहेगी थोड़ा सा, ठीक है. हालांकि उसमें एक एक्सेप्शन है, केस बाय केस हो सकता है स्टडी, केस बाय केस. अगर सच में बहुत अच्छा आइडिया है, गवर्नमेंट में इन फ्यूचर सी टू इट.
तो ये बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं। अच्छा, मैं मिशन युवा की बात कर रहा था, तो सर ने बात करी, तो इसमें भी लगभग आपको सीड कैपिटल अच्छा खासा मिल रहा है, जो खुसूसन जेएम के लिए पैकेज है 10 से 125 लाख यानी 1.2 करोड़ सीआर का आपको सीड कैपिटल मिल सकता है मिशन युवा के तहत। तो ये नॉर्मली स्कीम्स के लिए एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है, बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूथ के लिए खुसूसन है, बहुत सारा यूथ के लिए खुसूसन इनमें रखा गया है। एंड इन्होंने रखा है इसमें कुछ सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर भी इंक्लूड है। एंड सनराइज सेक्टर, व्हाट इज अ सनराइज सेक्टर? सनराइज सेक्टर हुआ जो प्रॉमिसिंग सेक्टर है, जिसमें खुसूसन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, पैसा दे रही है। जैसे हमारा आईटी सेक्टर है, जैसे रिसेंटली आया यहाँ जो जितने भी बजट में भी वो अनाउंस हुआ, जो हमारे आईटी रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनमें खुसूसन या ऑरेंज इकोनॉमी और ग्रीन इकोनॉमी को मिक्स करें, ऐसे ही जैसे ईवी व्हीकल्स हैं, ईवी व्हीकल्स हैं हमारे, उसमें अगर कोई ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड देयर आर सर्टेन पैकेजेस व्हिच आर क्लब्ड अंडर सनराइज इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आपको देखना है मिशन युवा, कुछ नहीं करना है, यू हैव टू लॉग इनटू मिशन युवा, ठीक है, वो जो वेबसाइट है उनकी, जस्ट चेक आउट कि मुझे मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है। सब्सिडी बेस्ड है, लगभग 25 से 30% की सब्सिडी है, और जो आपको 90% कॉस्ट होगा वो कोलैटरल फी होगा। कोलैटरल फी मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिंग या जेएनके गवर्नमेंट इज कमिंग एज अ गारंटर ऑफ द सेम। तो ये एक खुसूसन आपको, और कुछ नहीं करना है, इसके क्रेडेंशियल्स जैसे मैंने बोला ट्यून इन टू दैट लिंक, आप देखें वहाँ शराइत क्या है, आपसे आपकी बेसिक ज़रूरतें पूछी जाएगी, और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। एटलीस्ट ये तो सबके पास होता है, आधार, डिग्री में यू हैव टू शो, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देनी होगी, बैंक अकाउंट, ये बिजनेस प्लान आपको देना पड़ेगा, बिजनेस प्लान अगेन डीपीआर कि मैं क्या करने जा रहा हूँ इसमें। तो ये एक स्कीम रखी है जेएनके गवर्नमेंट ने खुसूसन। और जैसे मैं बात कर रहा था सेंट्रल स्कीम जो मिशन यूथ के लिए खुसूसन है, तेजस्वी स्कीम। तेजस्वी स्कीम इज बेसिकली फॉर अगेन फॉर स्टार्टअप्स, छोटे लेवल के, अगर आपको नैनो एंटरप्राइज, छोटे लेवल के व्यापारी जिसमें 5 लाख का खर्चा लगे, जिसमें ये कुछ अपकमिंग एंटरप्राइजेस, बुटीक्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं या कैफेज हैं जो ना, या इसके अलावा और भी है, तो इंटरेस्ट फ्री सब्सिडी है, यानी इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा 50,000 तक, छोटे लेवल के। तो इससे एज ग्रुप भी है, आप किसी भी डीआईसी से या किसी भी ब्रांच से आप हासिल कर सकते हैं ये स्कीम। बहुत सारी स्कीम्स खुसूसन वुमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, VLEs जिनको हम बोलते हैं, वुमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स। और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आया लखपति दीदी का, ठीक है, किसी को बहुत फेमस हुआ, बहुत फेमस हुआ, हाँ बहुत सारा प्रमोट भी हुआ सर, बहुत प्रमोट हुआ, मगर ये उसके लिए है जिसका टर्नओवर लगभग लाख के करीब हो, तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप बोलेंगे आप सर ये भी तो कोलैटरल फ्री लोन बेस्ड स्कीम है, मगर इसमें क्या होता है, जो लखपति दीदी बनती है ना, उनको बहुत सारा मार्केटिंग, जो जब भी कोई मार्केट आउटरीच इवेंट होता है, जैसे कोई कई जगह आपको फेयर्स होते हैं, बहुत सारे जहाँ पर ना एग्जीबिशंस होते हैं, तो वहाँ उनको एक स्पेस मिलती है, क्या मिलती है, स्पेस मिलती है इनको। तो ये आपको कुछ नहीं करना है, मैं होपफुली सर को मैंने पीपीटीज दे दी है, आपको सिर्फ इनको लॉग इन करना है, ठीक है, इनकी शराइत देखनी है, व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स। तो लोन्स भी इसमें मिल सकते हैं लखपति दीदी, अगर इस किस्म का होगा 10 लाख से 2 करोड़ का लोन आपको हासिल हो सकता है। ऐसी ही एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम, बहुत सारी, ये इनफैक्ट एमएसएमई के जो हमारा आता है वहां से क्या आपको टेक्निकल एडवाइसेस देती है। मुद्रा स्कीम का बहुत मेंशन था कि आप बताएं हमारे अगर छोटे व्यापारी हैं, हमारे जो इंडिया में एमएसएमईज हैं, छोटे लेवल के माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम रखी है, लोन बेस्ड स्कीम्स है। अगर इन्होंने 4 कैटेगराइजेशन इसमें रखी है, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोन फॉर देम, तो उन्होंने इनको 4 कैटेगरीज में तकसीम किया है। इसको हासिल करने के लिए अगेन
आपको या तो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उद्यम से आप रजिस्ट्रेशन हासिल करो या जहां से भी आपको ट्रेड की लाइसेंस हो और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। बहुत सारों में जीएसटी की जरूरत पड़ती है। तो ये एक स्कीम्स है। देखिए मैंने सारी स्कीम्स तो नहीं कह सकता बिकॉज ये बहुत लॉन्गर हो जाएगा, मगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको सही में फाइनेंस की आपको कमी नहीं है, गवर्नमेंट ने ऐसे जराए रखे हैं जहां से आप फाइनेंस करिए, मगर आपको प्रूडेंस यूज करनी है। पहले तो मैंने इंटेलेक्चुअल प्रूडेंस आपको फाइनेंस की समझ, दूसरा ये कि मेरे लिए कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी जिससे मुझे ज्यादा यानी वो मेरे लिए बर्डन ना हो। सब्सिडी बेस्ड इज विल बी द फर्स्ट चॉइसेस ऑब्वियसली। सब्सिडी बेस्ड कौन सी स्कीम है, अगर आप लोन पर जा भी रहे हो वो देखिए जहां पर सबवेंशन यानी जहां पर कम हो आपको इंटरेस्ट पे और फ्री हो। तीसरा अगर आपका ये भी है कि आइडिया तो आइडिया है, इट इज बेटर टू गो फॉर सनराइज इंडस्ट्री जहां गवर्नमेंट बहुत सारा प्रमोट कर रही है। तो आपको अप्लाई करने के लिए सही स्कीम देखो, जो भी आपकी जरूरतें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखो, और अगर कहीं जगह इनकी एजेंसियां हैं, क्योंकि बहुत सारे इदारे हैं जहां से आप स्कीम्स हासिल कर सकते हो। ऑनलाइन भी आपके पास ये सारे फीचर्स हैं। कुछ मैंने जब मैं स्कीम्स को थोड़ा सा झंझोड़ा, मुझे लगा कि स्कीम्स में ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अगर पूरा करें तो आप उनके जो रिक्विजिट्स हैं वो पूरा कर पाएंगे। आइडेंटिटी में के लिए आपको आधार या डोमिसाइल पूछा जाएगा। फाइनेंस और बिजनेस के लिए आपके पास अकाउंट होना चाहिए या रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए या डीपीआर होना चाहिए। तो ये कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। कहीं जगह अगर आपको लैंड का ओनरशिप के लिए पूछा जाएगा, ठीक है, और कई जगह आपको स्पेशल अगर आप कुछ बेनिफिट्स अवेल करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल क्लॉज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है, आपको सिर्फ दिखाना है कि आपको अपनी सर्टिफिकेट्स कुछ दिखानी है, चाहे वो रेजिडेंस की हो, कास्ट की हो या कोई एफिडेविट पूरा करना हो। विद दैट आई थैंक यू ऑल। ये इट वाज फ्रॉम माय साइड कि मैं आपको स्कीम्स का एक ओवरव्यू दूं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्लैरिफिकेशन है, आप पूछें बिफोर वी क्लोज द सेशन फॉर टुडे। कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग, कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क एनीथिंग रिलेटेड विद द एंटरप्रेन्योरशिप व्हाट सर टोल्ड। सर हाँ जी, जो ये HADP जो स्कीम है सर, ये फार्मर्स के लिए जो इसमें दिया जा रहा है, तो इसमें कुछ रूल्स हैं कि कुछ फार्मरों को दिया जाएगा या कुछ क्राइटेरिया ऐसे डिसाइड है कि हाँ। ये एलिजिबल नहीं, HADP खुसूसन JNK के लिए मगर आपको मैं ये नहीं नाउमीद नहीं करूंगा, गवर्नमेंट ने सेंट्रल लेवल पर भी एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी स्कीम्स रखी हैं, चाहे इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम्स हो, एंटरप्राइज बेस्ड स्कीम्स हो, तो वो सेंट्रल लेवल पर है। HADP खुसूसन जो JNK के किसानों के लिए रखा गया है, उसमें उनके लिए स्कीम्स है। अब उसमें भी जैसे आपने बताया कि उसमें भी हर फार्मर के लिए हर स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मानिए हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए, हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए कुछ लैंड की रिक्वायरमेंट्स होगी, ठीक है, जहाँ पर HADP को लगाने के लिए लगाया जाए उसमें लैंड कितना होना चाहिए HADP प्लांटेशन के लिए, तो और वो लैंड सूटेबल होनी चाहिए HADP के लिए। तो कुछ चीजें हैं जो कंडीशनल है जहां पर स्कीम को अवेल करना थ्रू HADP वो क्लियर हो जाए, फिर स्कीम्स में और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एंड देन इट डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, उनको अगर टारगेट्स भी मिले होंगे डिफरेंट एरियाज, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि अलग अलग एरियाज में जो सूटेबल है HADP के लिए, हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए, उनको पूरा कर पाए। बट बाय एंड लार्ज अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, आज गवर्नमेंट ने स्कीम्स को अवेल करना हैसल फ्री रखा है, यानी ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो जब फायदा उठाना चाहते हो, यानी आप प्रॉफिट चाहते हो, आप रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट गिव्स यू प्रॉफिट। रेवेन्यू मींस इनकम, जब सेल करते हो, ठीक है, रेवेन्यू सेल से भी आ सकती है, सब्सक्रिप्शन से भी आ सकती है, तो उसको काटे आप जितने खर्चे आपके, जितने भी खर्चे आपके, ठीक है। खर्चे निकालना बोलिए आसान बात है, मगर ये सबसे टफ चीज है, आपने खर्चे निकालना और उससे प्रॉफिट आपको आ जाएगा। अब इस प्रॉफिट पर क्या होता है, इसका सही इस्तेमाल करना।
हमारे में एक ऐसी टर्म है प्रॉफिट किसका हक होता है, प्रॉफिट पर किसका हक होता है, यानी जो आपने आमदनी कराई उस पर खर्चा जितना हुआ किसका हक होता है? हाँ, जो इन्वेस्ट जो इन्वेस्ट कर रहा है ओनर। जैसे आपको कल को जाके सबसे ज्यादा हक आपका प्रॉफिट पर है। हम वर्ड करते हैं यूज नेट प्रॉफिट, क्या करते हैं, यानी सारे खर्चे काट काट के, जिसको हम नेट रेवेन्यू भी बोलते हैं वगैरह वगैरह टर्मिनोलॉजी में। तो ये आपका सबसे बड़ा हक है, ठीक है, ये आपका बिलोंग करता है। मगर हम इस प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, बड़ी कंपनीज है, बड़ी कंपनी, अब छोटा सा बिजनेस, बड़ी कंपनीज के लिए बड़ा डिसीजन होता है। क्यों होता है? उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपने बहुत सुना है, आपने सुना होगा कि डिविडेंड, आपने वर्ड सुना है, डिविडेंड वर्ड नहीं सुना है? देखिए अब मैं समझाऊंगा इस एग्जांपल से। बड़ी कंपनीज में करोड़ों का प्रॉफिट होता है। क्या होता है? उसकी जो मैनेजमेंट होती है वो उनके लिए बड़ा फैसला होता है, क्या हम ये प्रॉफिट वापस अपनी जगह अपनी बिजनेस में फिर से लगाएं, फिर हम बोलते हैं उसको री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को फिर से अपने बिजनेस में लगाना। जैसे अगर आपके पास कल को आमदनी के बहुत सारे सोर्सेस हैं, आप चाहते हैं मैं इस बिजनेस से फिर इसी अपने बिजनेस में लगाऊं, इससे फिर और कमाऊं, दुगना तुगना करूं इसको, तो उनमें ये सबसे बड़ा फैसला होता है कि मैं रिटेन ये करूं, यानी अपने बिजनेस में वापस अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए लगाऊं या अपने शेयर होल्डर्स को दूं। ठीक है, जैसे शेयर्स पर आपको हर साल बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, बहुत सारे बिग कंपनीज के, ब्लू चिप कंपनीज के, जिनमें आपको डिविडेंड मिलता है, बहुत सारी कंपनी नहीं देते हैं, यानी प्रॉफिट का हिस्सा। तो उनको मानो 100 करोड़ का प्रॉफिट, 100 करोड़ आप फिर से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100 करोड़ में से वो क्या कर सकते हैं, ये वापस किया, ये सबसे बड़ा उनका पूल फंड्स का है। तो ये भी बड़ा एक फैसला होता है। सो एक अच्छा फाइनेंस का इस्तेमाल करना थ्रू आउट द एंटरप्रेन्योर जर्नी इन 4 स्टोनों पर डिपेंडेंट है। पैसे कितना जरूरत है, कहां से आएगा, किन पर लगाना है, और जो मुनाफा होगा उसका क्या करें, मुनाफा अपने लिए रखें कि फिर से बिजनेस में लगाएं। आपको समझ आई मेरी बात? तो अपने बिजनेस को खड़ा करने, जो भी आप प्रोसेसिंग का बिजनेस कोई भी करना है, ठीक है, या आप अभी नहीं सोच रहे हो, या दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं उनमें एक फाइनेंशियल मैनेजर होगा, या तो वो खुद वो बंदा करता होगा, या बड़ी कंपनीज में एक CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, ठीक है, जो ने इस काम के लिए रखा हो, और उसका अंडर स्टाफ एक आता है, क्योंकि फाइनेंस भी एक अलग से होती है जो ये 4 चीजें करती है। ठीक है, हमारा भी एक फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग से है, हालांकि गवर्नमेंट का रोल बिल्स के बेसिस पर होता है, ठीक है, उनका बजटिंग बनता है, बाज़ाब्ता फिर खर्चे होते हैं, मगर ये प्रिंसिपल वायलेट नहीं होता है। आई होप यू मेड सेंस आउट ऑफ इट। इससे समझ आई कुछ स्टार्टिंग ग्राउंड? तो अगर आपको ये मैंने एक्टिविटी कोई रखी थी, अब आपको क्या करना है अपने लिए, अभी तो मैंने लिखी नहीं, आपको कोई भी जो बिजनेस आपने सोचा ना, आप उसमें क्या करें, इनको 4 एक बनाएं, ये क्या बनाएं, क्रॉस सेक्शन में बोलते हैं ना, वो क्रॉस 4 बनाएं, ऐसे बनाते हैं, कुछ है मेरे पास ये 4 ब्लॉक्स, हाँ 4 ब्लॉक्स बनाएं, ठीक है, ये वाले 4 ब्लॉक्स ऐसे प्लस का साइन, ठीक है, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे, है ना, ठीक, ये वाले। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ठीक है। यहाँ हमारे लिए प्लस माइनस नहीं, अगर आपको याद होगा वो ना, वो हम पढ़ते हैं, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे पास क्वाड्रेंट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक क्वाड्रेंट नंबर 1 में देखना है, मुझे एस्टिमेशन करना है, क्या करना है, मुझे अपनी जरूरत ऑफ फाइनेंस निकालना होता है, एस्टिमेशन विल बी 1 क्वाड्रेंट। दूसरा कोऑर्डिनेट होगा सोर्स, कहां से आएगा, ठीक है, कहां से पैसा मुझे आएगा, जो आपको शायद मैं अपनी पीपीटी के थ्रू बताऊं कौन कौन से आपके पास सोर्सेस हैं। तीसरा क्वाड्रेंट जो आपको थिंक ओवर करना है, यूटिलाइजेशन, यानी किस पर मैं खर्च करूं। देखो अगर आप इनोवेटिव स्टूडेंट हो ना, आपके सारे आंसर्स आएंगे, आपको नहीं पता है, आप खड़ा कर सकते हो ऐसे ही। AI बेस्ड बिजनेस जाने में कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज आप फिर अपनी जोड़ाओ समझ में, ठीक है। फिर लास्ट वाला होगा कि आप खर्च कैसे करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, चौथा क्वाड्रेंट। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर रिचा यहाँ है, बिफोर दे एंड ये ना इनसे एक हैंड आउट लीजिएगा, इन्होंने क्या बनाया इसके बारे में, ठीक है मैम, प्लीज मुझे वो फिर फॉरवर्ड करिएगा, सो दैट मैं इनकी हेल्प करूं इसके बारे में। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स आप अपनी जगह रखें, वापस जाए, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद या इन दिनों सोचें मुझे क्या करना है, कैसे पैसे की जरूरत को पूरा करना है। जल्दी जल्दी से मैं कुछ चीजें आपको बताता जाऊं।
ये फाइनेंस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 प्रिंसिपल्स हैं, मगर मैं एक प्रिंसिपल की तरफ आपको खुसूसन ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। 4 मैंने लिखे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी का अगर एक दूसरे के साथ कोलिजन हो रहा है, वर्सेस मींस कोलिजन, ठीक है। हम बोलते हैं क्रॉस रोड्स, क्या बोलते हैं? व्हाट इज अ क्रॉस रोड? हाँ, इंटरसेक्शन। वहाँ 2-4 रास्ते हो सकते हैं, कम से कम 2-3 रास्ते। तो कभी कभार जिंदगी में ऐसे क्रॉस रोड्स आते हैं, फैसला लेना है और एक चूज किया दूसरा छोड़ना है ना। तो फाइनेंस में भी इस किस्म का लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का क्रॉस रोड आ सकता है। और वर्किंग कैपिटल की अहमियत तो मैंने आपको ओवरस्टेट कर ही ली, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मगर मैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर आपको बता दूं जो आपकी इन्वेस्टमेंट का सही नजरिया आपको थोड़ा शार्प करे, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या है? टाइम वैल्यू। आपको पता ही है, जो अगर मैं शुक्ला सर का बताऊं कि जब इनकी शादी हुई होगी, ठीक है सर, कितना खर्चा लगा? पर्सनल बात है। लगे थे उस दौरान भी लग गए थे 10 to 12 lakhs। 10 to 12 lakhs। रिचा मैम कितना खर्चा हुआ? सर मेरा पर्सनल है सर मेरा 20 to 20। मुझे भी लगता है मेरे शादी में भी वहां तक गया होगा, ठीक है। सर आपकी शादी कब हुई? मेरी तो 2008 में। 2008। मैम की शादी कब हुई? 2019 को। सॉरी, मैं पर्सनल चीजें बोल रहा हूं, रियली सॉरी। मेरी 2023 में 2023। बात मुझे ये करनी है कि हमेशा पैसे का वैल्यू यानी परचेजिंग पावर जो होता है वो किस लिहाज से होता है? वो होता है टाइम के हिसाब से। अगर शुक्ला सर का पैसा मानो उस वक्त के 10 लाख या 12 लाख बहुत वैल्यू था, ये तो है, ठीक है, बहुत वैल्यू रखते होंगे। और हमने स्टोरी सुनी है अपने फोरफादर से, या वो बोलते थे हमारी शादी तो 80 रुपए में हुई थी, राइट? दे यूज दीज टर्म्स। तो वो क्या बताना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि हमारा प्रिंसिपल बताना चाहते हैं कि पैसे की अहमियत होती है टाइम के हिसाब से। और हम आजकल जो समझ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन चल रही है, जो चीज आज है पता नहीं उसका वैल्यू कल को क्या होगा। तो कंट्री में तो बताते हैं कि जब आपको कॉस्ट एंड बेनिफिट यानी किसी चीज का खर्चा और किसी चीज का फायदा अगर आपको कंपेयर करना है, क्या करना है, तो आप ऐसे ही मत करें, उसमें टाइम वैल्यू देखिए। क्या दें? टाइम वैल्यू देखिए। अब मैं कैसे आपको समझाऊं? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ये चीज। जैसे यही बात मैंने आपको बताई कि आगे आने वाला पैसा या अभी का पैसा क्या ये बराबर है? नहीं। अगर आपको कोई 100 रुपए 2 साल बाद दे और आज 100 रुपए दे, ये बराबर है? नहीं है, क्योंकि आप अवेयर स्टूडेंट्स हो, आप अवेयर एंटरप्रेन्योर्स हो, आपको पता है आगे आने वाला 2 साल में उस शायद उतनी चीजें ना आए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप जब ये सोचेंगे तो यहाँ पर टाइम वैल्यू इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप सोचें आपके पास 5 लाख रुपए क्या है जो आपको आज की डेट में आ रहे हैं, मगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, आपको 10 लाख रुपए आ रहे हैं, मगर वो कब आ रहा है? फ्यूचर। आप में से कौन कितने लोग हैं जो आज का 5 लाख ले? प्लीज रेज योर हैंड। तो आपको 2 ऑप्शंस हैं, आपको अभी चाहिए 5 लाख या फ्यूचर में चाहिए 10 लाख, ठीक है। अच्छा, मैं टाइमलाइन मैंने जोड़ी है, कुछ नहीं, यहाँ नहीं जोड़ी है। जब मानो फ्यूचर कितना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, फ्यूचर आज का डेट 2026 है, मानो ये 2031 में आएगा आपको 10 लाख डबल। तो कौन बोल रहे हैं कि मैं 2026 वाला 5 लाख लूंगा? प्लीज रेज योर हैंड। ठीक। कौन बोल रहे हैं मैं 2031 वाला 10 लाख? हाउ मेनी ऑफ यू? 3 हैंड्स। फिर आप सारे ही ले रहे हो, पहले वाला सारे ले रहे हो, ये वाला 31 में 10 लाख, 4 लाख में दुगना हो रहा है। लेकिन हमें मत पूरा पता है कि उस टाइम पे भी इन्फ्लेशन है आगे फ्यूचर में, तो ये इक्वल ही हो जाएंगे आपस में दोनों। So it also depends on the need. Today I need 5 lakh. I need like for my startup I need 5 lakh. I need it, sir. In future that 5 lakh only I can increase with. Now if I invest it, I can increase further. very good point you have. जैसे आपने बताया ना, उन्होंने जैसे बताया कि हमें पता नहीं 10 लाख का वैल्यू कल की डेट में जब मुझे वो आ जाए, will it be
बराबर टू 5 लाख और लेस देन 5 लाख, सो इनके दिल में हिचकिचाहट, नहीं तो आंखें लग जाएगी यार 4 साल में दुगना हो रहा है, जो पुलिस में बहुत सारे बोल रहे हैं दुगना करेंगे, हाँ 21 दिन डबल। मसला पैसे ही है, nobody wants to leave it. अब मैंने 21 दिन नहीं बोला था, टाइम स्पैन एक अच्छा दे दिया था, मगर जैसे इन्होंने भी फरमाया कि सर इट विल डिपेंड ऑन, अगर मैं इन्वेस्ट करूंगी है ना, इन नीड, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट की होगी, सो आई मे अर्न मोर देन दैट और लेस देन दैट। इसमें दो आंसर्स है, एक फाइनेंशियल आंसर, एक एंटरप्रेन्योरियल आंसर। क्या है? फाइनेंशियल आंसर मींस कि आप फाइनेंस में देखेंगे, आप टाइम वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? फाइनेंस का वैल्यू बोल रहा है ये, आप देखिए 10 लाख आया 5 लाख के बराबर है प्रेजेंट वैल्यू में कि उससे जायद होगा। क्या होगा? यानी जो आगे आने वाला 10 लाख है, क्या वो आज के 5 लाख के बराबर होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? ठीक है। दूसरा आंसर ये होगा एंटरप्रेन्योरियल आंसर। मुझे तो 10 लाख आ रहे हैं, उसके बाद अगर मैं 5 लाख अभी करके खर्च करूंगी 10 लाख आएगा, चाहे वो, मैं अभी आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ किस में, आप बैंक में जा रहे हैं, आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर वो माइंडसेट उसका आ जाएगा कि आया मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी है कि मैं इससे बेहतर कमाऊं, राइट, दैट्स एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं मगर फाइनेंशियल एंगल से आपका जवाब कोशिश करूंगा देने की। तो मैं अब इसी ऑप्शन को आगे चलाता हूं, इसी ऑप्शंस को मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट नहीं करा है, तो इसी को बोल के, तो इसमें मिसिंग क्या है? इसमें मिसिंग है कि फाइनेंस हमें पता होनी चाहिए कि पैसा किस रफ्तार से गिर रहा है, फ्यूचर का। ठीक है, हम बोलते हैं उसको टेक्निकली वर्ड डिस्काउंटिंग रेट क्या होनी चाहिए, यानी हमें पता होनी चाहिए कि पैसा किस लिहाज से गिर रहा है, डिस्काउंट रेट क्या है पैसे की। अगर आपको मैं अपने क्लासेस में स्कूल टाइम में जानना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स क्लास आपने सुना है, आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हम क्या करते थे, बेसिक प्रिंसिपल एक पर्टिकुलर रेट पर, हमने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये क्यों रेट है, हमें सिर्फ रेट वहां से गी होती थी, प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना है, फॉर्मूला लगाए, अगर सिंपल इंटरेस्ट है P × R × T / 100, तो आपका जो अमाउंट है वो आ गया। मगर उसकी जो वेरिएबल्स है उस फ्यूचर सम को निकालने के लिए, वो फ्यूचर सम था, यानी आज आपकी डेट में देख रहे थे मेरा पैसा अगर मैं बैंक में डाल रहा हूँ वो 3 साल 4 साल बाद कितना होगा इस रेट पर अगर जाएगा, तो उसमें मगर कुछ वेरिएबल्स थे रेट, वेरिएबल्स था टाइम। ठीक है, वो हमें पता नहीं था वो किस वजह से वहां पर था, क्या वो बैंक रेट थी, वो हो सकती थी बैंक रेट है, वो RBI से मिली हुई बैंकों रेट्स थी, वो उसकी वजह से उन्होंने रेट लगाई थी, मगर शायद उस वक्त 9th क्लास में हमारी विजडम, शायद उस वक्त फाइनेंशियल विजडम उतनी नहीं होती, हमारी सिर्फ कैलकुलेशंस की बात। और होता था सिंपल इंटरेस्ट और फिर होता था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड में क्या स्पेसिफिक बात थी जो सिंपल में नहीं थी? रेट चेंज होती हर मंथ या साल के हिसाब से। कोई और आंसर? इंटरेस्ट का अमाउंट प्रिंसिपल में ऐड होता था, उसके बाद उसका लगता था। हाँ, वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट था। ठीक है, कंपाउंड में क्या था, जो पहले साल का जो अमाउंट निकलता था उस पर फिर लगता था इंटरेस्ट रेट। सिंपल में वैसा नहीं था, सिंपल में जो इनिशियल प्रिंसिपल था उसी पर था। ठीक है, दैट वाज द बिग डिफरेंस। तो वो चीज, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑब्वियसली आपकी फिर रेट जो फाइनल आपका अमाउंट होता था वो बड़ा होता था देन द सिंपल इंटरेस्ट। दैट वाज द सिंपल बेसिक कैलकुलेशन। दैट्स हाउ बैंकिंग बिजनेस आल्सो ऑपरेट। दे ऑपरेट ऑन कंपाउंड बेसिस, वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको चढ़ाएंगे अगर आपका लेफ्ट ओवर है। अब दूसरी टेक्निक ये हमने कंपाउंडिंग सुनी थी, मगर जब हम प्रोजेक्ट्स को या फाइनेंस के एंगल से देखते हैं, हम मोस्टली दूसरी एक टेक्निक यूज करते हैं, डिस्काउंटिंग। हम क्या करते हैं, जो फ्यूचर आने वाला पैसा है उसी को आज की डेट में लाते हैं। क्या लाते हैं? जैसे यहाँ पर 10 लाख 4 साल बाद आएगा, ठीक है, हमें यही प्रेजेंट में लाएंगे। क्या लाएंगे? This will bring it in the present। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? वेरिएबल्स। I should know the rate of discount। हमें R पता होनी चाहिए, हमें और पता होनी चाहिए टाइम। क्या पता होनी चाहिए? टाइम। As was the case in compound interest, we multiplied to the principal, the formula। In case of discounting, we divided। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के एंटी। तो डिस्काउंटिंग में हम वो प्रिंसिपल यूज करने। ये तो हुआ कैलकुलेशंस पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट को मैं अब कंसेप्चुअली आपको बताऊंगा। फॉर्मूला ये है, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था,
तो इसका फैसला करना कि 4 साल बाद मैं 10 लाख लूं कि या आज की डेट में, फाइनेंस के एंगल से मैं क्वेश्चन करूंगा। क्या करूंगा? बताइए जी, इस रेट पर कितने रेट पर ये गिर रहा है पैसा? रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट इज नॉट एन इजी थिंग टू नो, बिकॉज ये बाज़ाब्ता जो इंस्टीट्यूशंस हैं या एक कंट्री में डिसाइड होती है किस रेट पर पैसा गिर रहा है। हमारी नेबरिंग कंट्री में अलग रेट पर होगी, हम में अलग रेट पर होगी, और एडवांस्ड कंट्रीज में अलग रेट पर होगी। तो ये बनती है रेट किस हिसाब से, जो मैंने फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस की है। रेट कितना है? रिस्क फ्री रेट, बैंकिंग रेट, ठीक है, और उस पर इन्फ्लेशन का कितना होता है, और रिस्क का भी, क्योंकि ये रिस्की है अगर आप फ्यूचर लेंगे, और फिर जो भी एडजस्टमेंट्स करनी होगी। तो फॉर्मूला ये है प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए, मगर ये मैं आर बोल रहा हूं कैसे अराइव होता है। बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में बैंक रेट, जो वर्ल्ड बैंक की रेट है, वो एप्लीकेबल होती है। तो हमारी टेक्निक होगी, जो मैंने इस प्रिंसिपल को जब अप्लाई किया, इस फॉर्मूला को, उसने बोला कि आपका जो 10 लाख आने वाला फ्यूचर में पैसा है, वो आज की डेट में उसका वैल्यू कितना है? 6.2 lakhs अप्रोक्सीमेटली। और मैंने यहाँ एज्यूम किया है 10% की डिस्काउंट रेट। क्या की एज्यूम? 10%, यानी पैसा इस लिहाज से गिरेगा 10% हर साल। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये कंपाउंड बेसिस पर है, रिमेंबर दैट, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला में बोला। अब डिनोमिनेटर इसका चेक करें। अब इससे हम समझ क्या लें? देखिए, अब समझ ये है, आपके पास कंपैरिजन अब थोड़ा सा इजी बन गया। इससे पहले मैंने दिया था 2026 में 10, 2031 में 2026 में 5, 2031 में 10। अब दूसरा कंपैरिजन क्या बन गया? प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से 2026 में मिलेंगे आपको 5, और जो आपका फ्यूचर में आ रहा है उसका रियल वैल्यू, वो था नॉमिनल वैल्यू। क्या था? नॉमिनल था 10, और उसका रियल वैल्यू कितना है? 10% की गिरावट के साथ 6 पॉइंट। अब बताएं कौन सा ऑप्शन लेंगे? फर्स्ट वाला ऑप्शन लेंगे कि दूसरा वाला? फर्स्ट वाला स्टिल लेंगे। फर्स्ट वाला क्यों लेंगे? फाइनेंस के एंगल से बोल रहा हूँ। बताओ, रीजन बताओ भाई। क्योंकि आप वो 6 लाख के बराबर बना, तब तुम 5 ही ले रहे थे ना। हाँ, that there she is। क्योंकि दूसरे वाले में 5 लाख से भी उसका रियल वैल्यू तो 5 लाख से ज्यादा है, ठीक है। तो फाइनेंस के एंगल से दूसरा वाला ऑप्शन फिर अच्छा है, ठीक है, मगर इसमें assumptions हैं। क्या है? फर्स्ट assumption, रेट गिरावट है 10% के लिए, ठीक है, तो वो assumption है आपका, ठीक है। तो उस assumption की बुनियाद पर आपके लिए दूसरा ऑप्शन फिर बेहतर है। तो बात मुझे ये करनी है आपसे, दैट इज अ मैसेज क्लियर, कि जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। पहला स्तंभ जो फाउंडेशन है फाइनेंस की, हमेशा कॉस्ट जो होता है वो आज होता है, बेनिफिट फ्यूचर में आएगा। मैं आपको उसको रियल लाइफ में आपको समझाऊंगा। जितने भी आप वेंचर्स एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनका खर्चा अभी होगा। हम बोलते हैं 0 पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? इनको लगाना है बिजनेस जी, कोकोनट का प्रोसेसिंग, इनको दूसरी चीजें लगानी है, हमारे एक मित्र को लगानी है कुछ और चीजें, ठीक है, तो वो प्रेजेंट में आएगा। इसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज में भी कुछ ऑनलाइन का कुछ मैकेनिज्म, कुछ वेबसाइट बनानी हो, ऑनलाइन के कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर कायम करने हो, या एक फिजिकल आउटलेट बना, वो आज की डेट में क्या है? आज की डेट में। मगर फायदा कब आएगा? जब वो बिजनेस एस्टैब्लिश होगा, आप कुछ टाइम उसमें गुजारेंगे, इट विल स्टार्ट टू गिव यू बेनिफिट्स। बेनिफिट्स फ्यूचर में होते हैं। और पता है, अगर आपको फंड्स हासिल भी करने, रिमेंबर सेकंड स्टेप, सोर्स ऑफ फाइनेंस। आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, चाहे वो कोई चाहे गवर्नमेंट की स्कीम भी, वो आपको बोलेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए जी। क्या बनाए? उसमें आपको लिखना है, मुझे ये आइडिया है, इसका लेआउट ये है, ये बिजनेस है, ये इंडस्ट्री में बिलोंग करता है, इसका प्रमोटर क्या रहेगा, इसका स्ट्रक्चर स्टाइल क्या रहेगा, ये जी कोऑपरेटिव स्टाइल होगा फॉर एग्जांपल। और उसमें एक चीज ये भी लिखी होगी, क्या आपने लगाया अंदाजा इसमें कॉस्ट कितना जाएगा और फायदा कितना आएगा? अंदाजा। दे वुड लाइक टू नो हाउ यू आर सीइंग द थिंग्स, ठीक है, वो आपको बताएंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट आपको सबमिट, और इनफैक्ट बहुत सारी स्कीम्स में प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना होगा, और ये फाइनेंस की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। सो मैंने, आई होप ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो ये फाइनेंस का एक प्रिंसिपल है, तो ये इसकी अंडरलाइंग ये assumption है। अच्छा, अगर आपने कुछ समझा, जरा इसका मुझे थोड़ा सा फिर विस्तार से बताएं। अगर
मेरे पास अगर आपने ये समझा तो मैं चाहता हूं कि आप फाइनेंस का ये सिंपल सा प्रिंसिपल एग्जीक्यूट करें। मगर उससे पहले आपने लिखी हमारी फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट रेट को निकालने के लिए। अगर हमें किसी चीज को प्रेजेंट में लाना है उसकी फॉर्मूला क्या है? न्यूमरेटर में फ्यूचर वैल्यू, डिनोमिनेटर में 1 प्लस आर, हाँ, एंड आर इज द रेट, एन इज द टाइम। तो उसको ध्यान में रखेंगे। तो प्योरली अगर मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट है जो मैं लगाना चाहता हूं और उसका इन्वेस्टमेंट में मुझे जा रहे हैं 2 लाख, कितने जा रहे हैं? मानो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा और फिर वर्किंग कैपिटल सारा 2 लाख है, या इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बेसिक 2 लाख का जाता है जो बेसिक है। और मैं थोड़ा सा एक टाइमलाइन देखता हूं 2030 में, इससे मुझे आ रहे हैं बेनिफिट्स, कितने आ रहे हैं? मानो ये एक्यूमुलेटेड बेनिफिट्स हैं, एक साल बाद दूसरे साल 4 लाख के बेनिफिट्स आ रहे हैं। मुझे आपसे सुनना है कि क्या आप अगर ये पैसा इस बिजनेस में गिर रहा है 12% की रेट से, क्या आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं? आई वांट एन आंसर प्योरली फ्रॉम फाइनेंस। क्या आप इस बिजनेस में पैसा लगाएंगे कि नहीं जिसमें 2 लाख जा रहा है और 4 साल बाद 4 लाख आ रहे हैं? क्या आप बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे? अगर आप नॉमिनली देखिए आप चाहेंगे यस ठीक है करेंगे, क्योंकि 2 लाख 4 गुना हो रहा है। मगर इसको फाइनेंस पर आके जरा इसका देखिए 4 लाख का वैल्यू रियली जो आपका खर्चा अभी जा रहा है कॉस्ट उसके बराबर है कि उससे ज्यादा है या क्या है? ठीक है, आप आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? आपको जो 4 लाख है उसको देखना है प्रेजेंट वैल्यू में इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, 2 लाख का अभी का वैल्यू 2 लाख ही है बिकॉज वो अभी के वक्त में है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू 4 लाख को डिवाइड कीजिए 1 प्लस आर, आर कितनी है? 12। हाँ, तो 12%, 0.12 भी आप लिख सकते हैं 12% की बजाय, और उसका जो पावर होगा नोटेशन होगी वो 4 होगी। तो मुझे एक वैल्यू बताया वो कितना आ रहा है? सर 1 माइनस आर है 1 प्लस आर है। सर डिनोमिनेटर में ना 1 माइनस आर है 1 प्लस आर है। प्लस ऑब्वियसली प्लस, उसको बार 4 दफा करना है। 1.12 को मल्टीप्लाई पावर मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 टाइम्स विद हिमसेल्फ, है ना? पावर का आपको पता ही है। स्टेपल कल मॉर्निंग कुछ वैल्यू निकाला आपने? Really, we sincerely thanks to Dr. Omar Fayaz Khan. He is the assistant professor in Institute of Business and Policy Research, Squash K, for delivering an excellent and insightful lecture. Now I request to training coordinator and Dr. Rishi Richa kindly give a memento to Dr. Omar Fayaz Khan. बहुत अच्छा था सर आपका। मैंने आइए सर, अगर किसी एक को भी कुछ हासिल हो, बिल्कुल बिल्कुल, that will be a success That story will be to all of us. to all of us. सच में अगर मतलब इनके थ्रू अगर आपने SHG एक ही फिर से को मदद मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। इसे फोटो नहीं, हाँ इससे भी ले, यहाँ पे नहीं सिस्टम पे। अच्छा हाँ हाँ ले